Hello and welcome you all in your history class. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a topic which is the third part of the chapter India in 18th century. In today's session, we will be discussing about the independent kingdom Mysore and Maratha. So, let me start the topic. So, the first name is the Hyder Ali, who was the ruler of Mysore, who established its rule in Mysore in 1761. At first, he was a foot soldier. वो पहले फुट सोल्जर था एंड रोज हिज रैंक ही रोज थ्रू द रैंक्स, धीरे धीरे वो रैंक्स को बढ़ाता गया एंड देयर आफ्टर ही कंट्रोल ओवर एंड रूलर ऑफ मैसूर इन 1761 में वो रूलर बन जाता है मैसूर का. ही हैज एन अटैकिंग पॉलिसी अगेंस्ट ब्रिटिश. तो ब्रिटिश थे उसके खिलाफ अटैकिंग पॉलिसी को इसने रखा एंड ही साइन द कोऑपरेटिव ट्रीटी. अब क्योंकि इसकी पॉलिसीज अटैकिंग थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो उसको क्या हुआ, इसने ये जरूरत समझी कि वो जो निजाम जो थे हैदराबाद के, ठीक है, उनके साथ और मराठास के साथ एक कोऑपरेटिव ट्रीटी को साइन किया कि अगर कभी युद्ध होता है बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मैसूर किंग, यानी कि हैदर अली के बीच में, तो दीज कोऑपरेटिव अलायंस ऑफ मराठास एंड निजाम्स ऑफ हैदराबाद विल help him. But later on the Nizam of Hyderabad were given their support to the Britishers, and whenever the army of or the force of Britishers were come from Bombay to Mangalore, during that time Hyder Ali attacked on the Britishers army and defeated them in the first Anglo-Mysore war, which was held in 1767 to 1769. So the treaty between the Hyder and Britishers were signed, the Treaty of Madras. हम उसको Treaty of Madras के नाम से जानते हैं, जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को मैंगलोर में हरा दिया था. Then what was the eminent work from them? The Hyder Ali, he controlled the rebellious जमींदार. इन्होंने क्या किया कि जो जमींदार थे rebellious होते चले जा रहे थे, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल किया एंड ही इम्प्रूव्ड द सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर द फार्मर्स एंड द पीजेंट्स, ठीक है, एंड ही एस्टैब्लिश्ड द मॉडर्न आर्सेनल एंड दिंदीगुल नाम की एक जगह है, वो पास में ही है मैसूर के, तो उन्होंने एक मॉडर्न आर्सेनल एस्टैब्लिश किया. आर्सेनल वेयर द वेपन्स एंड द वारफेयर मींस और द एक्सप्लोजिव्स वर मेड एंड स्टोर, जहां पे इनको रखा जाता है, बनाया जाता है. देन लेट्स बी look over the Anglo-Mysore wars, which was the quick overview. The first Anglo-Mysore war was fought between the Warren Hastings, the Britishers under Warren Hastings and Hyder Ali. And Hyder Ali ने किसको हरा दिया था? Britishers की सेना को, and the Treaty of Madras were signed. Then second war of Anglo-Mysore war between 1780 to 1784, the under Warren Hastings, the one more treaty with the Britishers for Hyder Ali, Treaty of Mangalore were signed. And in 1782 to 1799, the third Anglo-Mysore war was fought under the Cornwallis, the Britishers army, and with the Tipu Sultan and the Treaty of Srirangapatnam were signed between them. And in 1799, under the Lord Wellesley, the Tipu Sultan were dead in this fourth Anglo-Mysore war. If you talk about the next ruler of Mysore, who was Tipu Sultan, also known as Tiger of Mysore. Basically, he was the son of Hyder Ali, and after his death, he got the title 1789 as a Sultan. He introduced your name with a Sultan after that by reconstructing his army and the manuals. Now, influenced with the ideas of French Revolution. So, उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज थे उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था और उसको उसने काफी इन्फ्लुएंस किया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में. रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसको काफी हद तक यूज भी किया. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न वेपन्स एंड एस्टैब्लिश्ड द नेवी इन 1796. और उसने मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ मॉडर्न वेपन्स का यूज किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी रिफॉर्म में, ठीक है. एंड ही मेड established navy in 1796. बहुत अच्छी बात है कि मॉडर्न नेवी की इसने एस्टैब्लिशमेंट की. एंड कंस्ट्रक्टेड डॉकयार्ड इन मैंगलोर, मोलिदाबाद एंड दाजीबाबाद. इन तीन जगहों पर उन्होंने डॉकयार्ड भी बनाए. क्यों? क्योंकि उसको डर था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इन रास्तों से उसके एम्पायर में विघ्न डाल सकते हैं. He was much focused on trade and
कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा फोकस था, एंड ही आल्सो वांट टू मॉडर्नाइज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। देन वेस्टर्न कंट्रीज के सहयोग से उसने इंडस्ट्रीज को डेवलप और मॉडर्नाइज करने की कोशिश भी की, एंड ही इंट्रोड्यूस द न्यू करेंसी एंड न्यू यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, नई करेंसी को वो लाता है और मेजरमेंट की नई यूनिट्स को भी वो इंट्रोड्यूस करता है। ही इंट्रोड्यूस द न्यू कॉइन्स ऑन विच द पिक्चर्स ऑफ इंडियन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस वर मेड एम्बेडेड। He gave the donation to the Shankaracharya for the construction of the new temples, and it shows that he was religious too at some aspects, and he was the first ruler who mixed his administrative tactics with the administration of the western countries। तो ये पहला ऐसा रूलर था जिसने अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स को, स्ट्रेटजीज को मिंगल किया, मिक्स किया विद द वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के और पॉलिसीज के साथ, एंड मेक द पॉलिटिकल सिस्टम और द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी स्ट्रेंथेन। ही एस्टैब्लिश्ड द जैकोबिन क्लब। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी दे रहा हूं कि यू हैव टू फाइंड द अबाउट द जैकोबिन क्लब। आपको ये मिल जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में, ठीक है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, 1789 में, तो उस समय जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी उधर के लोगों के द्वारा। इसके बारे में आप पता लगाइए और कमेंट सेक्शन में दीजिए। देन ही सेंट हिज एम्बेसडर्स टू अरब्स। इसने अपने एम्बेसडर को अपने अरब में भेजा, उसने मॉरिशस में वो भेजा, कॉन्स्टेंटिनोपल में भेजा, काबुल में भेजा। किस लिए? टू कॉपरेशन फॉर द अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड देयर पॉलिसीज, ठीक है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसने अलायंस को कंस्ट्रक्ट करने को कहा और अपने एम्बेसडर्स को इन देशों में भेजा। सो कई जो लेखक हैं साम्राज्यवादी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि टीपू सुल्तान को के बारे में एक कोट लिखा, और क्या लिखा? ही वॉज द मोस्ट प्योर एंड सिंपल, यानी सीधा साधा दैत्य, ठीक है, इसके नाम से उसको बताया। एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 4th एंग्लो मैसूर वॉर इन 4th of May 1799। तो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ये लड़ते हुए 4th एंग्लो मैसूर वॉर में ये मर जाता है। We look towards the Marathas. In 17th century, the Marathas were the minor chieftains and controlled over Bijapur, Golconda, and Ahmednagar kingdom. Later on, they dominated and declared themselves independent during the later Mughals, which was inefficient rulers and the weak administrative policies. तो इन्होंने अपने आप को क्या किया? डोमिनेट करना शुरू कर दिया उनके ऊपर, एंड उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। Then Shivaji, who was the Marathas kingdom carving by him. Okay, उन्होंने शिवाजी ने क्या किया? He carved the Maratha kingdom, यानी एक मराठा किंगडम को एस्टेब्लिश किया इन द कोंकण रीजन। अगर आप मुंबई और गोवा के बीच का जो क्षेत्र देखेंगे वो पूरा कोंकण रीजन है, उसके ऊपर वहां पर उन्होंने इस किंगडम को एस्टेब्लिश किया। बट द सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी वर इनएफिशिएंट और इनएमिनेंट। वो बहुत ही ज्यादा क्या थे? वीक सक्सेसर्स थे। तो उसका क्या हुआ कि द पावर वाज फास्ट इनटू द हैंड्स ऑफ पेशवाज। जो पावर थी वो किसके हाथ में चली गई? पेशवाज के हाथ में चली गई। पेशवाज कौन थे? जिसको आज हम प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो द ड्यूरेशन बिटवीन द 1713 to 1761 पेशवाज वाज कंट्रोल्ड ऑन द मुगल्स मराठास रूल। तो मराठा रूल या किंगडम के ऊपर जो है पेशवाओं का अधिकार था, इन्होंने रूल किया फ्रॉम 1730 to 1761। So in 1730, Shahu, who was the grandson of Shivaji, appointed बालाजी विश्वराव एज अ पेशवा। तो बालाजी विश्वराव को पेशवा के तौर पर उन्होंने अपॉइंट किया। तो यहाँ से पेशवास का जो टाइम है वो स्टार्ट कर जाता है। तो यहाँ पर जो पहला बालाजी विश्वनाथ जिसका नाम है वो 1730 से 1720 के बीच में आपका क्या करता है? रूल करता है अंडर द मराठास। सो he took the advantage of the weakness of Mughals। उस समय मुगल्स क्या थे? पूरी तरीके से वीक थे। वीक होने के साथ इनएफिशिएंट थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। तो उसका एडवांटेज लेता है और फर्रुख शियार को वो फोर्स करता है कि जितनी भी जीती हुई टेरिटरीज थी वो उनको रिटर्न करे, ठीक है। तो फर्रुख शियार क्या करता है कि सारी की सारी जो जीती हुई टेरिटरीज थी वो बालाजी विश्वनाथ को रिटर्न कर देता है। एंड ही गॉट द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी। और इसके पास ये अधिकार हो जाता है
कि वो चौथ और सरदेशमुखी उस रीजन से वो ले सकता है जहां पर मुगलों का आधिपत्य था, जहां पे मुगलों का कंट्रोल था, यानी मुगलों के रीजन से ये चौथ और सरदेशमुखी दोनों ही कलेक्ट करने का अधिकार पा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है कमेंट बॉक्स पे चौथ और सरदेशमुखी के बारे में भी बताना है। अर्लियर आई हैव टॉट यू कि चौथ और सरदेशमुखी क्या है, इसके पहले 7th क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। नाउ द सेकंड पेशवा between 1720 to 1740, बाजी राव फर्स्ट, he was also known as the fighting पेशवा के नाम से जाना जाता है because he was the eminent administrator। इसने मालवा, साउदर्न गुजरात और बुंदेलखंड के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया and he conquered them and he was the successor of विश्वनाथ, ठीक है, and he defeated the Nizams of Hyderabad and he got the right to collect taxes on in their territories, the Nizams of Hyderabad। He also captured Salsette and Basin from the Portuguese। पुर्तगीज के द्वारा जो सेल्सियस और बेसिन थे उसको भी इसने वापस कैप्चर कर लिया, और ये इस तरीके का इसका टाइमलाइन था। Then if we move towards बालाजी बाजी राव from between 1740 to 1761, he was the head of Marathas। So after the death of शाहू क्योंकि मर जाते हैं, who was the grandson of शिवाजी, तो उसके बाद पूरा का पूरा जो कंट्रोल हो जाता है, उसका जो हेड होता है वो उस समय का पेशवा हुआ, और पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। तो he is appointed the head of the Marathas and he shifted his capital from सतारा to पूना। सतारा महाराष्ट्र में है और पूना भी महाराष्ट्र में, तो उसने कैपिटल सतारा से पूना को शिफ्ट कर दिया। एंड अंडर हिज रेन मराठास रीच राजस्थान एंड पंजाब इन नॉर्थ। यहाँ तक कि मराठास का जो किंगडम था वो राजस्थान और पंजाब तक पहुंच गया इन नॉर्थ की तरफ, और बंगाल और उड़ीसा तक पहुंच गया इन ईस्ट की तरफ। पूरा उन्होंने कंक्वर्ट कर लिया, अपने साम्राज्य को फैला दिया, एक्सप्लोर कर दिया। देन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड हैदराबाद वर फोर्स्ड टू सेकेट टेरिटरीज एंड पे ट्रिब्यूट। तो जो आपके हैदराबाद और मैसूर के जो किंगडम थे, इसके ऊपर भी इन्होंने अधिकार किया और उन टेरिटरी से टैक्स का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। एंड मराठास एट द ग्रेटेस्ट पावर अंडर हिम, और मराठा उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर होते तो बालाजी बाजीराव के टाइम में मराठास अपने पीक पावर में होते हैं। Then if we talk about the third battle of पानीपत which was fought in 1761, तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, it was the expansion towards the north by the बालाजी। अब ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? 1761 आते आते उस समय जो है बालाजी बाजीराव रूल कर रहे थे मराठा में, तो इन्होंने अपनी फोर्सेस और अपने एम्पायर को, किंगडम को नॉर्थ तक स्टैब्लिश कर दिया, तो पंजाब तक पहुंच गए थे। एंड ही क्रिएट दिस सिचुएशन विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अहमद शाह अब्दाली हु वाज द रूलर इन नॉर्थ, और मराठास के बीच में क्या हो जाता है? टैकल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एंड वेयर द आर्मीज मेट इन पानीपत इन 1761, तो अहमद शाह अब्दाली की आर्मी और मराठा बालाजी बाजीराव की आर्मी वहां पर आपस में मिलती है पानीपत में, और लड़ाई होती है, जिसको हम पानीपत के वॉर से जानते हैं, थर्ड बैटल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो पानीपत का बैटल था उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन कौन थे। सबसे पहली बात तो अहमद शाह अब्दाली, उसके साथ नाजिबुद्दीन दौला, ठीक है, नाजिबुद्दौला जो कि रोहिलखंड का रूलर था, और साथ ही में शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। ये सारे एक साथ जो है अलायंस बनाकर एक मराठा की आर्मी से लड़ते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली मराठास वेयर defeated in this third battle of Panipat in 1761. So dear students, what was the factors which are responsible for the failure of the Marathas to capture or conquer all kingdoms in India? तो पूरे के पूरे भारत पर ये अपना अधिकार क्यों नहीं कर सकते थे? कौन से ऐसे फैक्टर्स और कॉजेस थे जिसकी वजह से मराठा कहीं न कहीं पीछे रह गए पूरे भारत पे कंट्रोल करने के लिए? Then the first reason is the lack of unity। तो जो पहला रीजन आता है वो लैक ऑफ यूनिटी का आता है अमंग द मराठास, अमंग द पेशवाज ऑफ मराठास। तो बेसिकली क्या था कि जो उस समय 5 ग्रुप ऑफ पेशवाज थे, ठीक है, उस समय पेशवाज के मराठा के रूल के अंतर्गत 5 ग्रुप्स थे। तो पांचों ग्रुप का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ग्रुप था पेशवा ऑफ पूना, ठीक है, पूना का पेशवा यानी पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप आपका हो गया गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा पूना के पेशवा हो गए।
under the Marathas. Okay, and Gaikwad of Vadodara. Then third one is Bhosle of Nagpur. And fourth, the Holkars of Indore. एंड ग्वालियर के आपके हो जाएंगे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर. सो बेसिकली देयर वर 5 ग्रुप्स ऑफ पेशवाज वेयर एट दैट टाइम. ठीक है, तो इन्हीं के बीच में क्या था, मराठास का पूरा एम्पायर और किंगडम था, कंस्ट्रक्टेड था. तो एट दैट टाइम देयर वर नो यूनिटी अमंग देम, among these 5 ग्रुप. तो इन पांचों ग्रुप के बीच में कोई भी यूनिटी नहीं था. अगर किसी भी बात पर इनकी आपसी मंत्रणा एक दूसरे से अलग अलग थी, डिफरेंस थे. सो इट क्रिएट्स द जेलेसी विथ ईच अदर एंड फेल्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर मराठास किंगडम. ओके, एंड यूनिटी को ये पूरी तरीके से नहीं फेवर कर पाते. देन मराठास अलिनेटेड अदर रूलर्स बाय रेडिंग देयर किंगडम. तो मराठाओं का एक टैक्टिक्स था कि दूसरे के जो रूल जो एम्पायर है उसके ऊपर रेड डालना, लेकिन रेड डालने के बाद वो वापस आ जाया करते थे और उनके ऊपर टैक्सेस को लेविट कर देते थे कि नहीं ठीक है, हमने आपके ऊपर प्लंडर किया, हमने आपके ऊपर अटैक किया, अब आप हार गए, आप हमको सिंपली टैक्स देते रहिए. लेकिन कभी भी उन्होंने उस जगह पर रहकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की, अपनी आर्मी को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कभी नहीं की. और दे हैवंट बिलीव्ड इन द they neglected the trade and commerce and industrialization. इनका कोई नाता नहीं था. they have used the policies which were not fit for that time, और that was the failed to develop modern army. और इन्होंने मॉडर्न आर्मी बनाने में भी ये सब फेल हो गए थे. एंड they did not adopt the modern European techniques of warfare. और ना ही इन्होंने मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक्स का यूज किया वारफेयर में, और ना ही ये साइंस और टेक्नोलॉजी को फेवर करने वाले थे. तो दीज आर द रीजंस. और यही नहीं, ये जो जिस जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे ये इतना वीक था कि उधर के लोगों के ऊपर उनके साथ फेथ और कोऑर्डिनेशन बनाने में भी ये कामयाब नहीं हुए. तो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर द फेलियर ऑफ मराठास किंगडम टू ऑक्यूपाई ऑल ओवर इंडिया. So dear students, we have learnt much more from this chapter, India in 18th century, under which we have learnt about the declination of Mughal Empire, some regional independent kingdoms. So if you have any doubt or query, you can simply write in the comment section, then I will resolve your queries. Thank you and very much. Take care and bye bye.